Okay, good morning my dear students. Today we discuss coordinate geometry, day 28 part 2 and our topic is section formula. Clear? In coordinate geometry we discuss the section formula. Now this chapter related to section formula. It means section means होता है means dividation. Clear? You know that a lot of section in our school, like 9th A, 9th B, 9th C, 10th A, 10th B, 10th C. There are, it means each section means division of any other population. किसी भी population को या किसी भी system को divide करना ही section बोला जाता है. Clear? And in the coordinate geometry we know that if we have a straight line and if you want to divide this straight line, then we use the section formula. In your syllabus, the proof are not asked in examination related to the section formula as well as the distance formula or area of the triangle. Only its application. Its application means only problem are asked in the examination related the topic. Now in this chapter, the third topic, area of the triangle, are removed for our board point of view, board examination. Here only two topics, one is the distance formula and other is the section formula, are coming in the examination, in board examination. Here third topic, area of the triangle, will not coming in the board examination because it removed from our syllabus due to the COVID-19. Clear? But we already discussed what is the area of the triangle. Now we discuss section formula. Before this we know that distance formula. See, distance formula. I think everyone know what is the distance formula. If there are 2 points A and B, clear? You know that if we have 2 points, then we can get a line and coordinate of the point here x1 y1 and x2 y2. Then what is the distance between the points? What is the distance between the points? For this we can use formula. Distance is denoted by the d and it will be under root x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Clear? It is the distance formula and its base. What is its base? Its base is the Pythagoras theorem, means right angle triangle. Here, now here we can discuss the section formula. Section formula means if we have a line A and B, a line with 2 points A and B, and its coordinate is x1 y1 and x2 y2. Here, and this line is divided in any. When we can divide, then we got the ratio. Here, then in any ratio. Suppose it is m1 and it is m2. m1 and m2 are the ratio. Means this line AB is divided m1 ratio m2. Then when it is divided, then we got a point in between the line. Then if we have in between the line, then we can find the coordinate of the point P. What is the coordinate of the point P? Here सेक्शन फार्मूला हम क्या करते हैं? हम यह करते हैं कि यदि आपको कोई लाइन दिया है और किसी रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करना होता है, तो जो रेशियो में वह लाइन जिस पॉइंट पे डिवाइड होगी उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट बताना होता है. ठीक है, तो इसका यहाँ हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x है और यह y है. ठीक है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है? x है और y है. तो देखिए क्या हो जाता है, x क्या हो जाएगा,
m1 x2 plus m2 x1 अपान m1 plus m2, और यहाँ y कैसे निकालोगे आप? m1 y2 plus m2 y1 अपान m1 plus m2. Using this formula, we can find the coordinate of the point P, x and y, which is divided the line AB ratio m1 m2 m2. Now we can prove how we can get the value of this. See, here it is xy plane, y dash, x dash x, clear? And here a point A and another point B. It is a line. The coordinate of A is x1 y1 and the B is x2 y2. Clear? A point which divide this. Here the point is called the P, and the coordinate of point P is xy, and the point P divided the line in the ratio m1 and m2. It means AP is equal to m1 and PB is equal to m2. Clear? Then we can find the coordinate of this. Okay? Then see how we can prove the formula. You can join this also, and it is also. Clear? Then what you can do? You can also join like this way. Clear? Understood or not? I think everyone aware. Then see, it is the origin, distance from origin. This distance, suppose it is KLM. Okay, it is PQR. Yeah. Then डिस्टेंस फ्रॉम O टू L. अब O से L का डिस्टेंस क्या है? यह पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या है? x. ठीक है, मीन्स OL इज इक्वल टू x, एंड डिस्टेंस फ्रॉम O टू K, OK इज इक्वल टू x1, एंड डिस्टेंस फ्रॉम O टू M, OM इज इक्वल टू x2. आ रहा समझ में? देखिए, यह जो डिस्टेंस है यह x1 है. यहाँ आपका जैसे आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, तो यह x1 हो गया, यह x2, और ऐसे ही यह पॉइंट है आपका, यहां से यह KA किसके बराबर है? अब देखिए, AK किसके बराबर है? y1 के. ठीक है, आ रहा समझ में? अब यहां से PL यह डिस्टेंस कितना है? y के बराबर है, और BM कितना है? यह डिस्टेंस y2 के बराबर है. अब लगभग आ रहा होगा सबको समझ में क्या क्या कैसे है. अब देखिए, अब यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है. यह सब 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह जो लाइन है XY एक्सिस 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो लाइन आप ड्रा किए इन सभी लाइंस के पैरेलल ड्रा किए. इसका मतलब जो भी होगा एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक, अब आप इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाओगे. इसके पहले आपको यह जानना होगा कि AP इक्वल टू M1 और PB इक्वल टू M2 है. या आप कह सकते हैं कि AP अपान PB इक्वल टू M1 रेशियो M2, और इट विल बी रिटन M1 अपान M2.
इट मीन्स AP इज इक्वल टू M1 एंड PB इज इक्वल टू M2। क्लियर? अब देखिए यह जो हमको ट्रायंगल मिल गया यहाँ पर, अब इस पूरे जो भी ट्रायंगल है उसको हम इधर लाएंगे। देखिए अब हमको एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया, यह है आपका AQP, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल PRP, ठीक है। यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री। अब देखिए एक बार यहाँ आपको हम बता दें, यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यह एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल होगा। जैसे ये देखिए, यह जो दो लाइन है और इस टाइप से कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ यही एंगल क्या करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा कि यह एंगल आपस में इक्वल है। कौन सा एंगल? यह एंगल यहाँ A और यहाँ एंगल P आपस में इक्वल है। फिर आप यदि इसको जो है लाइन हम ऐसे समझ लें, ठीक है, और ऐसे इसको कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यह एंगल भी आपस में इक्वल, सॉरी, यह एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि यह भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर यह जो दोनों एंगल है यह भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इस फिगर में आप देख रहे हो कि एंगल A is equal to angle P and this angle P is equal to angle B, clear? And it is the 90 degree. Again this AP is equal to M1 and this PB is equal to M2. Now we discuss what is the AQ and what is the PR. Then see, here it is AQ. You know that distance from O to L is equal to x1, sorry, O to L is x and distance from O to K is x1. आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यह डिस्टेंस आपका x1 है। हमको केवल यह डिस्टेंस चाहिए, तो इस पूरे लाइन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में? और KL और AQ आपस में इक्वल होगा, देखिए KL is equal to AQ and LM is equal to PR. LM is equal to PR, ठीक है ना। देखिए यह है आपका LM और यह है PR, ठीक। और ऐसे ही यह जो डिस्टेंस है AK is equal to BL, sorry, QL, AK is equal to QL, ठीक, and PL is equal to RM, clear? Because all are the rectangle. See, then here this length AQ. See here, AQ is equal to, कैसे आप निकालोगे? KL, AQ and KL आपस में इक्वल है because it is the opposite side of the rectangle and it is equal to OL minus OK. अब OL कितना है? X और OK कितना है? X1. तो आपको यह डिस्टेंस मिल गया कितना? X माइनस X1। आ रहा समझ में? ऐसे ही आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है PR. It is get more time.
ऐसे ही पी आर का डिस्टेंस निकालना, देखिए कैसे निकालोगे आप। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, x2, और यह डिस्टेंस है x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस होगा ना, यह डिस्टेंस आपका कितना है, देखिए यहां से यहां तक यह डिस्टेंस x2 है, और इसमें से हम यह x डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या क्या होगा, पी आर होगा। देखिए पी आर इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ एस मान लेते हैं, पी आर इज इक्वल टू एल एम, और एल एम कैसे आप निकालोगे, ओ एम माइनस ओ एल। ओ एम कितना है आपका, x2 माइनस x1। अब यह डिस्टेंस हमको कितना पता चल गया, x2 माइनस x1, और सॉरी x2 माइनस x, ठीक है। देन आफ्टर PQ एंड BR। अब देखिए PQ आप कैसे निकालोगे, यह डिस्टेंस आपका कितना है y1, और यहां तक y है, तो यह डिस्टेंस हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यह डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस y1 सिमिलरली। और ऐसे ही आपको यह डिस्टेंस निकालना है, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y है, और यह टोटल डिस्टेंस कितना है, y2 है। तो y2 में से हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको br निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा यह, y2 माइनस y1। है समझ में। तो इस तरीके से आपको दो ट्रायंगल मिल गया और इसके सभी साइड मिल गए। अब इस ट्रायंगल में आप ए सिमिलरिटी दिखाओगे, ए सिमिलरिटी इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड ट्रायंगल पी आर बी। तो इसमें एंगल ए, अब जैसे कैसे आप लिखोगे, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर बी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अभी आप लिखे हो। फिर एंगल पी ए क्यू, देखिए पी ए क्यू, और यहां पर बी पी आर इक्वल टू एंगल बी पी आर, यह करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और एंगल ए पी क्यू, एंगल क्यू पी ए इक्वल टू एंगल आर बी पी, आर बी पी, यह भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब यह क्या हो गया, बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल पी आर बी। अब यह सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी, सिमिलरिटी का यह होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखिए अब करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, यहाँ Q है और यहाँ R है, तो यहाँ Q के सामने क्या है, तो AP अपान PB इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ इस एंगल P के सामने क्या है, AQ, और यहाँ B के सामने क्या है, PR, और यहाँ इस एंगल के सामने क्या है, PQ, और इस एंगल के सामने क्या है, PR, ठीक है। तो यह सिमिलरिटी से यह आपस में इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे यह वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो यहाँ पे यह वैल्यू हम रखे हैं ना, तो देखिए AP और PB क्या हो गया, यहाँ पे M1 अपान M2, AQ कितना है, X माइनस X1 अपान PR मीन्स X2 माइनस X,
इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस, सॉरी ये y है ना, y2 माइनस y, क्लियर? With the help of this ratio, first we compare both and then after we compare for the with the y. क्या करेंगे, पहले जो है m1 और m2 को x के साथ कंपेयर करेंगे, फिर m1 और m2 को y वाले के साथ कंपेयर करेंगे. देखिए जरा, m1 अपान m2 इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x. जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये m1 x2 माइनस m1x m2x माइनस m2x1. ठीक है, आ रहा है समझ में? अब यहां से नंबर की तरफ लाएंगे हम. देखिए यहाँ m2, इसको इधर ले आएंगे, इसको एक तरफ ले जाएंगे. ओके, अब टू हियर वी डिस्कस एंड देन आफ्टर